Hello students and welcome to my channel. In this video we shall do chapter number 5, blow hot, blow cold. The key points which we will be discussing are about the process of breathing, breathing speed, breathing hot and cold, and good breathing habits. Now let's start. All living things breathe to stay alive. All living things breathe, सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए. What is breathing? Breathing is the taking in and giving out of air. हम सबको पता है we take in the oxygen given out by plants. Okay. Now we living things give out carbon dioxide which is taken in by the plants, and in return they give out oxygen which we breathe in. So breathing in is the taking in and giving out of air. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. So what do we breathe in? We breathe in oxygen, and what do we breathe out? We breathe out carbon dioxide. What does breathing help our body to do? Breathing helps our body to absorb oxygen. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ब्रीदिंग, एंड टू रिमूव द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, what are we breathing in? We are breathing in oxygen. So breathing helps our body to absorb that oxygen. And what are we breathing out? We are breathing out carbon dioxide. What is carbon dioxide? It is harmful for our body. So breathing will help us remove this harmful carbon dioxide. Now, the oxygen we breathe in helps to digest the food and convert it into energy, जो हम आगे chapters में detail में पढ़ेंगे. What does the oxygen? What is the air which we breathe in? It is oxygen. Why do we need oxygen? To help digest the food. हम खाना जो खाते हैं, ये जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है. Now, let us read respiratory system. Respiration means breathing. So, the system which is involved with the process of breathing is called as respiratory system. The process of breathing in air is called inhalation or inspiration. In, under. So, process of breathing in air is called inhalation or inspiration. The process of breathing out, बाहर लेके जाना हवा को, is called exhalation और expiration. In मतलब अंदर, ex मतलब बाहर. This whole process is called respiration. So the process of breathing in air is called inhalation or inspiration. Process of breathing out air is called exhalation or expiration, and the whole process is called respiration. Now what is the organ system which is responsible for respiration? That is called your respiratory system. Now let us study the respiratory system in detail. Now the main organs of respiratory system, what are they? They are your, आप थोड़ा सा इमेजिन करके इस सब को पढ़ेंगे. आप कहाँ से इनहेल कर रहे हैं? अपने नाक से. सो मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला कौन सा हुआ? आपका नोज हुआ. जैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ आप ये डायग्राम को रेफर करते जाएंगे. नोज के थ्रू आपने ब्रीथ किया, फिर गया वो आपके विंड पाइप में, और फिर एंटर किया आपके लंग्स को. ठीक है, तो ये तीन चीज आपका पहला मेन है. ठीक है, मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इमेजिन कीजिए, नाक से लिया, विंड पाइप के थ्रू आपके लंग्स में गया. तो व्हाट आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. We breathe in air through our nose. Up, the tiny hair inside the nose, they trap the dust to prevent it to enter the body. अब आपके नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर है वो, उसका भी एक पर्पस है. वो क्या करते हैं, नाक के अंदर वो जो डस्ट होता है वो उसको ट्रैप कर लेता है, सो दैट इट डज नॉट एंटर द बॉडी. वो डस्ट आपके बॉडी के अंदर गया तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा. तो वो जो छोटे छोटे बाल आपके नाक के अंदर है, इट हेल्प्स टू ट्रैप द डस्ट. Because when we are breathing in air, there are a lot of dust particles which are coming in through the nose. So the hair in the nose prevents the dust from entering the body. It goes through the windpipe. What goes through the windpipe? The air we breathe in goes through the windpipe through the nose. पहले nose के through windpipe में जाएगा. Into a pair of bag-like structure located in our chest called lungs.
देखो ये दो जो है ये हमारे पैर में है, जो भी चीज़ दो में होते हैं वो उनको हम बोलते हैं पैर। सो पैर ऑफ लंग्स कैसे शेप में है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में है। कहाँ पर है, लोकेटेड इन अ चेस्ट। Now, the lungs are protected by your rib cage, which consists of 12 pairs of curved bones called the ribs. Now, ribs join with each other in pairs and forms a rib cage. The rib cage का purpose क्या है? It will protect the heart. So, a strong muscular organ called diaphragm lies below the heart. Below the heart lies your diaphragm. यहाँ पर देखिए आपका diaphragm है, ठीक है। It moves our chest in and out every time we breathe. जैसे जितने बार हम सांस लेते हैं उतने बार आपका diaphragm in and out होता रहता है। Now, when we breathe in air, the diaphragm moves down and lungs expand with the inhaled air. जब हम सांस लेते हैं डायफ्राग्राम आपका क्या होता है, नीचे हो जाता है। ये डायग्राम को फॉलो करेंगे। वी आर ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन कर रहे हैं, तो ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो आपका डायफ्राग्राम है वो नीचे हो रहा है, ठीक है। When we breathe in air, the diaphragm moves down and lungs expand with the inhaled air. अब ये जो हम सांस भर रहे हैं वो जाके कहाँ पर भर रहा है, वो आप हमारे लंग्स में भर रहा है। वो लंग्स में एयर भरने की वजह से हमारा डायफ्राग्राम नीचे हो रहा है, क्योंकि हमने डायग्राम में देखा हमारा जो डायफ्राग्राम है वो हमारे लंग्स के नीचे है। So when we breathe in air, the diaphragm moves down and lungs expand, मतलब बड़े हो जाते हैं with the inhaled air. Inhaled air मतलब हमने जो सांस अंदर लिया उससे हमारे लंग्स फूल गए and they push the diaphragm down. Now when we breathe out, the diaphragm relaxes. क्योंकि हवा बाहर छोड़ते हैं तो diaphragm relax हो जाता है and ऊपर उठता है and जो lungs में जितना भी air भरा हुआ है वो निकल जाता है। Now there are millions of air sacs called alveoli inside the lungs. Lungs के अंदर air sacs होते हैं जिसमें हवा भरता है, वो हम उसे alveoli बोलते हैं। They are covered with a network of tubes that carry blood around the body. Now let us see this diagram in detail. This is the process of breathing in. Breathing in air from the nose through the windpipe, it enters the lungs. ये आपका bag shaped pair of lungs है, ठीक है। तो उनके अंदर लंग्स में जब हवा जाता है तो हवा से भर के वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होने के कारण नीचे जो डायफ्राग्राम है, जैसे कि लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम है तो इनमें जब हवा भर जाता है तो नीचे हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ओके। अब देखिए ब्रीदिंग आउट में क्या होता है, हवा छूट जाता है बाहर तो लंग्स थोड़ा सा छोटा हो जाता है एंड इट इज टेकन आउट और एक्सेल्ड आउट थ्रू द नोज। Now one thing which you have to learn is the ribs are connected to the breastbone in the front and backbone at the back. ये बहुत important है। आपका जो ribs है, ribs क्या है, the lungs are protected. ये देखिए ये जो येलो में है ना, they are your ribs. द लंग्स ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके लंग्स को, क्योंकि लंग्स जो है डेलिकेट ऑर्गन है तो उनके ऊपर एक कवरिंग होना चाहिए जो कि रिब केज करता है। एंड रिब केज में रिब्स होते हैं, कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स। रिब्स जो है आपके कर्व्ड बोन्स है, ये दिख रहे हैं आपको, ये येलो में ये कर्व्ड शेप्ड बोन्स है, ठीक है। और 12 के पैर में है ये, ठीक है। ये क्यों है रिब्स है, रिब केज क्यों है, to protect your lungs which are delicate organs. Now ribs join with each other in pairs and form a rib cage. Now rib cage will also protect your heart, ठीक है। So अब ये rib cage ribs जो है सामने they are connected to the breastbone and पीछे आपका backbone है उसके साथ connected है। Last two pairs of ribs are connected to the backbone but do not join with the backbone in the front. They are called floating ribs. अब देखिए 12 पैर में से जो 2 पैर है लास्ट के वो आपके बैकबोन के साथ कनेक्टेड तो है बट सामने जाके जुड़ते नहीं है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। द इनहेल्ड ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जैसे हमने
पहले मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हम इनहेल क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है उस ऑक्सीजन का हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी. सो हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? द फूड, द इनहेल्ड ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. खून में वो एब्जॉर्ब हो जाता है. क्या एब्जॉर्ब हो जाता है? जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है. और फिर जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजन टू द होल बॉडी, क्योंकि वी नो ब्लड ही तो हर ऑर्गन को ट्रांसमिट करता है ऑक्सीजन. सो इट इज द ब्लड विच absorbs the inhaled oxygen and distributes oxygen to the whole body. Now the food is oxidized. ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन उसमें काम करके वो फूड पे उसको डाइजेस्ट कराता है. कैसे? टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हार्मफुल टू द बॉडी. सो अगेन इट इज सेंट थ्रू द ब्लड टू द लंग्स एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोज. तो ये जो गैस रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसे ये इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी. इट हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो हाउ विल इट बी रिमूव्ड? इट विल बी सेंट थ्रू द ब्लड, बिकॉज ब्लड इज द ट्रांसमिटर ओनली. सो इट विल गो टू द लंग्स एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोज, एक्सलेशन करते वक्त. ठीक है. सो ऑक्सीजन गोज इन फ्रॉम द नोज टू द विंड पाइप और द ट्रैकिया एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द लंग्स. अब लंग्स में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर मिलियंस ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली इनसाइड द लंग्स. ठीक है. अब इस एल्वियोली में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो ब्लड को कैरी करते हैं अराउंड द बॉडी. सो एल्वियोली और एयर सैक्स से जाते हैं ब्लड में से बॉडी में जाता है एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर एक्सलेशन के थ्रू निकल जाता है. ओके. नेक्स्ट, ब्रीदिंग स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस विद डिफरेंट एक्टिविटीज़. अब जैसे हम एक्टिविटीज़ करते हैं उस हिसाब से हमारा ब्रीदिंग का स्पीड डिफर करता है. इट बिकम्स फास्टर व्हेन वी रन, स्विम और साइकिल, क्योंकि इसमें एक्सर्शन ज़्यादा है. इट इज़ बिकॉज व्हेन वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन द हार्ट बीट्स फास्टर टू पंप मोर ब्लड. अब मोर ब्लड मतलब द ब्लड विल कैरी ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर टू बर्न फूड फास्टर टू रिलीज मोर एनर्जी. अब समझिए, आपको किसी भी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आता है? अगर आप जो खाना खाते हैं वो आपका फूड से आता है एनर्जी. अब वो फूड कैसे बर्न होगा? जब आपका ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, वो फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करने में, तभी आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग. और ये ब्लड कैसे आएगा जल्दी? जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हार्ट ज़्यादा फास्ट बीट करेगा ज़्यादा ब्लड रिलीज करने के लिए. ठीक है. और ये ब्लड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट विल कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. क्यों? टू बर्न द फूड विच वी हैव टेकन टू गिव अस एनर्जी टू डू ऑल दीज इवेंट्स और एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग. अब ऑन एन एवरेज आवर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट होता है. इट बीट्स अप्रॉक्सीमेटली 100,000 टाइम्स अ डे टू पंप ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. ये नाउ ऑन एन एवरेज आवर हार्ट बीट्स हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट? 72 टाइम्स पर मिनट. 72 times per minute our heart beats. It beats approximately 100,000 times a day to pump blood to all body parts. A resting heart pumps blood slowly. जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो it will pump your blood slowly about 60 times in a minute. Doctors listen to the heartbeat of patients by using a special instrument called stethoscope. तो आपका ब्रीदिंग रेट चेक करने के लिए डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप. यू विल memorize the spelling of stethoscope. We can also feel the heartbeat of a person by touching the pulse. So this is the stethoscope. It is a Y-shaped tube. ये देखिए Y शेप में है. इसको बोलते हैं फनल. अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाए तो उनका स्टेथोस्कोप देखिए मांग के, और उसको देखेंगे कि वो वाई शेप में है. ये जो पार्ट से उसको फनल बोलते हैं, और इसको एक रबर ट्यूब से जोड़ा गया है. सो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर हियर? हाउ मेनी टाइम्स डज योर हार्ट बीट ऑन एन एवरेज? how many times a day does your heart pump blood to all body parts? And what is a stethoscope? These are the three important things you have to remember here. So, wrist of the person's left hand with the fingers of your right hand. You can count your pulse rate or the number of times your heart beats in a minute.
नाउ नॉलेजपीडिया में जानेंगे आर लेफ्ट लंग इज अ लिटिल स्मॉलर देन द राइट लंग. वी नो दैट आर लंग्स आर इन पेयर्स. ठीक है, सो जो हमारा लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा है राइट लंग से. वाई? बिकॉज इट एकोमोडेट्स द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. आपके हार्ट को वो एकोमोडेट करता है लेफ्ट लंग, इसीलिए वो थोड़ा सा छोटा है राइट लंग से. आवर हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न टिल द मोमेंट वी डाई विदाउट रेस्टिंग एट ऑल. इट नेवर टायर्स. तो हमारा हार्ट ही है जो हमारे पैदा होने से मरने तक काम करता है. नाउ ब्रीथिंग हॉट एंड कोल्ड. वी यूज आवर ब्रेथ इन मेनी अदर वेज टू. वी ब्लो ऑन हॉट थिंग्स टू कूल देम. जब कोई चीज़ गर्म होती है तो हम फूंक मारते हैं तो वो ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल वी ब्लो ऑन हॉट टी, हॉट मिल्क, हॉट फूड आइटम्स टू कूल देम सो दैट दीज डू नॉट बर्न आवर टंग. नाउ वी ब्लो ऑन आवर हैंड्स टू वार्म देम ऑन चिली डेज. ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं, अपने हाथों को ब्लो करते हैं सो दैट थोड़ा सा गर्म हवा आ जाए. इट इज़ बिकॉज आवर बॉडी इज वार्म इनसाइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहीट. अब यहाँ पर चिली डेज में हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी जो है बहुत वार्म है तो हमारे हाथों को जो बहुत ठंडे हो गए होते हैं उसको गर्म करने के लिए फूंकते हैं. ब्लो ऑन अ मिरर और योर स्पेक्टिकल ग्लासेस. द सर्फेस बिकम्स क्लाउडी. आपने कभी देखा है आईने या फिर आपके चश्मे में जब फूंक मारते हैं तो वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है. क्यों? आप ट्राई करना. बिकॉज अ ब्रेथ हैज़ वाटर वेपर. हमारा जो सांस में वाटर के वेपर्स होते हैं, ठीक है, विच कंडेंस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस. एक कोल्ड सर्फेस में जब ये वाटर वेपर्स आते हैं कॉन्टैक्ट में तो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स योर वाटर वेपर्स. Now we blow on our burnt fingers to cool them because the air we breathe out is cooler than the burnt area. ठीक है, जब हमारा हाथ जल जाता है तो हम फूंक मारते हैं उस पर. क्यों? क्योंकि जो जला हुआ पोर्शन है वो तो गर्म है लेकिन हमारा जो सांस है वो उससे ठंडा है, तो ठंडा करने के लिए. अ पर्सन कुकिंग ऑन अ चूल्हा ब्लोज ऑन द बर्निंग पीसेस ऑफ वुड. इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प्स द फायर टू बर्न. देखिए यहाँ पे वो फूंक मारती है आग में क्योंकि ऑक्सीजन देने से आग और भी तेज जलेगा. माई ग्रैनी सेज डू नॉट ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ. अपने सांस रोकने की कोशिश मत करना बिकॉज हम सफोकेट हो जाएंगे. सफोकेट मतलब हमें घबराहट सी होने लगेगी बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारे बॉडी को. सो इट इज़ अ डेंजरस थिंग टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर टू लॉन्ग. अवॉइड सच रिस्की ट्रिक्स. नाउ व्हाट आर सम गुड ब्रीदिंग हैबिट्स? It is advisable to develop good breathing habits to stay healthy. We must try to breathe in fresh air. साफ फ्रेश एयर में हमें ब्रीथ करना चाहिए. डू नॉट कवर योर हेड वाइल स्लीपिंग क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. नेक्स्ट, ऑलवेज ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड नॉट थ्रू योर माउथ. हमेशा नाक से सांस लीजिए, मुंह से नहीं. बिकॉज द हेयर इन द नोज विल एक्ट एज फिल्टर्स टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो आपके नोज में ही ट्रैप हो जाएंगे. Practice some deep breathing exercises every morning in the fresh air, like you can do pranayams in the morning. Now read and recall. हमने क्या पढ़ा? All living things need to breathe to stay alive. The process of respiration involves inhalation and exhalation. Inhaled air is rich in oxygen and exhaled air is rich in carbon dioxide. The speed of breathing changes with activities and we use our breath to cool and warm things. तो इसके साथ explanation हो गया. आगे हम exercises करेंगे.